Respected Sri Sohai Ahmad Sir, ZPC Anjao, Chief Guest of today's program, Engineer Bakrenzo Pul, Executive Engineer Power and Chairman of Kalsam, as the guest of honor, all the head of offices, participants and public present here today. I feel extremely privileged and honored to welcome you all on behalf of District Administration and Department of Sports and Youth to the closing ceremony of the district level 5th edition Hangpan Dada Memorial Trophy on football and volleyball for under 16 boys and girls, which was kicked off on 23rd February 2022. Before the commencement of the events, I would like to pay my humble tribute to late Havildar Hangpan Dada. Hangpan Dada, a brave soul, was born in a far-flung village called Borduria in Tirap district, Arunachal Pradesh. A Havildar in rank, joined as parachute regiment recruit, later transferred to Assam regiment and posted to 35 Rashtriya Rifles, where he served till he met martyrdom in Jammu and Kashmir. He was posthumously awarded Ashok Chakra in 2016, highest gallantry award during peacetime operation. Let us not forget his sacrifice. It elated me to see how the children are enthusiastic and taking part in sports activities. It is very much necessary on our part as a parent, as an elder sister, brother, teacher, to guide the students to take interest in both studies and co-curricular activities. As we know, apart from the reservation of sports person in government jobs, it has other benefits too. For example, playing sports increases our mental capacity and physical benefits too. So my humble request to all the participants playing here today, let us play the sport in a spirit that would reflect our respect towards Havildar Hangpan Dada and his sacrifice. I am happy to see how Hayuliang in particular as a place and Anjao as a whole is growing day by day, and I wish to see it grow more. Let us all together help in growing Anjao more. So, let us begin today's program with the blessing of Amik Matai. Thank you. विजय प्रेस का जो हमारा मीडिया फ्रेंड्स, मेरे छोटा भाई दिवसु बाजी यहाँ जो आए हैं, उनको भी मैं तहे दिल से मैं थैंक्स देना चाहूँगा। इनके साथ जितने भी अभी जो पहले जो खेल के आया हुआ, जो जितना हरा भी होगा, आप लोगों भी मैं मानने करना है। खेल तो एक रुपये जितना पहले मैं बोल चुका हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले मैं अभी जो हमारा जो मेरा दोस्त, मेरा साथी, हम लोग का युवन सर को मैं तहे दिल से मैं थैंक्स देना चाहूँगा, चिको सर दोनों को। तो हम लोग का जो एडीजी इंचार्ज मेरा मैडम यहाँ जो बैठे हुए हैं, यहाँ आके आज जो फाइनलिस्ट में यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ जो आने का जो मौका दिया, यहाँ आने का जो मौका दिया, इसलिए मैं तहे दिल से आप लोगों को मैं थैंक्स देना चाहूँगा। साथ ही साथ आप सभी को पता है अभी हांगकांग दादा जो मेमोरियल जो ट्रॉफी है, आपका जो फुटबॉल और वॉलीबॉल जो टूर्नामेंट है, ये हम लोग का जो हांगकांग दादा जो है, आप सभी को मालूम है कि हम लोग का इसको किस लिए याद किया जाता है। ये पहले हम लोग का जो गेस्ट होना, हम लोग का जो पुरस्कार ने सुंदर तरीका से आप लोग को बताया, ये इसलिए याद किया जाता है कि ये जो हांगकांग दादा जी जो है, हम लोग का देश के लिए, हम लोग का स्टेट के लिए, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के लिए इन्होंने जो अपना जान को बलिदान दिया, अपना जान को गवाया, उसको याद करते हुए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। कल उसमें मैं रिव्यू किया था, उसमें भी ऑर्गेनाइज किया था। अभी हम लोग का जो यून सर ने जो पहले सुंदर से बताया, वहाँ जो ऑर्गेनाइज किया, लेकिन वहाँ तो ऐसे तरीका से नहीं होती। इसलिए मैं यून सर और हम लोग का डीसी साहब को मैं तहे दिल से मैं ये स्टेज के माध्यम से मैं थैंक्स देना चाहूँगा, इतना सुंदर तरीका से यहाँ ऑर्गेनाइज किया। उस दिन भी जब हम लोग का डीसी सर का जो चीफ गेस्ट था, उसमें हमको गेस्ट ऑनर के रूप में बुलाया गया था, लेकिन इसलिए मैं आ नहीं पाया। इसलिए मैं यून सर और डीसी सर को मैं स्टेज के माध्यम से मैं मांगना चाहूँगा। उसमें मेरा भी एक मजबूरी था, क्योंकि उसमें मैं विजेता के रूप में मेवालों किया हुआ था। आपका
जो हम लोग का ये डिस्ट्रिक्ट का, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का, अभी हम लोग का जो गेस्ट होना जो बताया, हम लोग का जो हम लोग एडिक्शन होते हैं, कोई कहीं पीता है, कोई ड्रग्स पीता है, कोई लेजी होता है, उसको मैंने अपना शरीर को एक्टिव कराने के लिए, उसको मैंने भूलने के लिए, ये आपको ज्ञान को मैंने रखने के लिए अपने स्टार्ट किया जाता है। इसमें आपको पता होगा, आप सभी को मालूम है, आप खेल कूद करने से आपका 40% आपका बीमारी भी खत्म होता है, आपका पसीना देन आपका शरीर भी आपका फिजिकल ठीक हो जाता है। उसके बाद आपका जो टूर्नामेंट का जो आपका जो खिलाड़ी का जो एक्टिविटीज को देख करके आज का दिन में आपका स्पोर्ट्स का तरफ से, आपका गवर्नमेंट का तरफ से भी आपका नौकरी का सर्विस का भी एक प्रोविजन होता है, उसमें भी स्पोर्ट्स का तरफ से एक कोटा भी होता है। इसलिए आपको अच्छा से खेलना है, साथ ही साथ आपका शरीर भी ठीक होगा, आपका 40% आपका बीमारी ठीक होगा। मैं आपको मैं गर्व से मैं बताना चाहूंगा, हम लोग का एक बिलियन का एक लड़की है, एक तालियों लड़की है, वो अब डिस्ट्रिक्ट से खेल करके डिस्ट्रिक्ट से बने खेल करके स्टेट में गया। स्टेट जाने के बाद आपको आपका क्या बोलते हैं वो आपका वो सेंटर पहुंच गया। अभी वो गोवा खेलने जाता है, आपका मुंबई खेलने जाता है, आपका बेंगलोर खेलने जाता है। उपस्थित मैडम, शो मैडम और ओसी केसी सर जो पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही डीएसओ इंचार्ज यून सर, और यहाँ पे उपस्थित क्रो सर, प्री सर और लेबर यूनियन के यहाँ मनु भाई और एक सीनियर आदमी बैठे और बाकी सब जो भी कमेटी वाले। और मैं कमेटी को बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल मेरे को रिक्वेस्ट किया था एक बार आए करके, मैं शायद मेरा लाइफ टाइम में सिर्फ गेस्ट शायद फर्स्ट टाइम गेस्ट अपना फर्स्ट टाइम, मुझे तो ये सब भाषण देना भी आता नहीं है, तो पहली बार शायद आया है। यहाँ कुछ शब्द जो हमसे स्लिप हो जाए या कुछ हो जाए तो आप लोग नाराज नहीं हो। देखिए मेरा नाम बफरेंसो पूल है, हाँ वैसे मैं रहने वाला हवाई का ही हूँ, और इस वक्त जो हम पावर डिपार्टमेंट बदनाम डिपार्टमेंट में है, आप लोग को लाइट अच्छा नहीं दे पाता हूँ, इसलिए बताना भी मैं जरूरी नहीं समझता। एक्चुअली मैं बहुत बिजी था, मैं खुद कल भी बहुत मना किया, मैं नहीं आ पाएगा बोला, तो लड़का लोग का खेल है बोला, तो चलो तो क्यों ना हम ये पल का मौका उठाते हुए हम भी थोड़ा एक दो शब्द आप लोग का समझ में भी रख पाओ। बिजी इसलिए कि आप लोग का जो हाईलों को हमको लाइट देना होता है, आर्मी को देना, मेडिकल को देना, बहुत इम्पोर्टेंट। आर्मी वाला भी आप देखा है हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वो लोग को कुछ बिजली चाहिए बोला तेल डालने के लिए। हम लोग का आर्मी वाला रोज आता है, फिर यहाँ में जो दलाई ब्रिज में बैठता है वो लोग रोज कुछ कनेक्शन है उनका सैटेलाइट से, उन लोग को हम लोग बोलता लाइट चाहिए। मेडिकल है, स्टूडेंट है, यहाँ डीसी ऑफिस है, पब्लिक को तो चाहिए ही चाहिए। हंगपन दादा कौन था, कहाँ का है, किस लिए उसका नाम में याद किया जाता है, अशोका चक्र क्यों दिया गया, जैसे मैडम ने पहले बताया आपको। तो ये चीज का जैसे कि अरुणाचल गवर्नमेंट ने इसको हंगपन दादा का नाम में आप लोग को अवेयर करा करके स्पोर्ट्स में यूथ लोग को जोड़ना चाहता है, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं आजकल खेल में आप फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, क्रिकेट में आप व्यस्त रहोगे तो बिल्कुल आपका मतलब चरित्र साफ होगा। कुछ गलत चीज करना था भी ठीक है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम यहाँ बिजी रहेगा, आप शरीर से भी स्वस्थ रहेगा, मन से भी तंदुरुस्त रहेगा। तो ये स्पिरिट को लेते हुए 5th एडिशन चल रहा है हम लोग का, आप लोग को लाइन में लाने के लिए कर रहा है। लेकिन आप लोग तो सोचता होगा हंगपन दादा आया करना है, अंदर से ऑब्जेक्टिव जो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे। मिसमी हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जबकि आप देखिए आदि गालो हम लोग का पता नहीं, जो हम लोग का निश्चित आगे जो बहुत एडवांस हम लोग से 100 गुना आगे जा रहा है, 100 गुना आगे है, वो 100 साल आगे। वो लोग इस वैल्यू को समझता है, इसलिए वो लोग क्रिकेट में भी, फुटबॉल में भी, वॉलीबॉल में भी, सब चीज में वो लोग आगे है, पढ़ाई में, नौकरी में, हर चीज में, डॉक्टर, इंजीनियर, सीओ में। अभी देखिए यहाँ में अभी एक भाई चला गया, ये दादो सर, यहाँ में देखो दादो सर आया और मैडम बैठा हुआ, ये लोग सब बाहर से आया, बहुत अच्छा है, और ड्यूटी भी बहुत बढ़िया से कर रहा है। ऐसा होता है, सब मेहनत करना होता है। तेजी सर यहाँ बैठा हुआ देखिए, मेहनत करके आया होता है, तो कोई भी ऐसे आराम से नहीं मिल जाता है।
तो सॉरी मैं ज़रा टाइम ले रहा फिर से, और मैं इस मीटिंग का बात भी थोड़ा सॉरी मतलब ये प्रोग्राम का बात मैं बीच में छोड़ के जाऊँगा। हाँ सर। वॉलीबॉल के जो चैंपियन टीम है टीम गोयलियांग, उनके कोच काफी खुश होंगे। कोच है तौशिक, काफी मेहनत के साथ इस टीम को बनाया और इस टीम को चैंपियन बनाया। इतना आसान नहीं होता किसी भी टीम को बनाना, और खासकर खिताब जीतना। टीम मैनेजमेंट में काफी कठिनाइयां आती है, उसके बावजूद भी उन्होंने टीम को बखूब एक बेहतर टीम तैयार किया। उनके टीम में से भी काफी खिलाड़ी है जो आगे स्टेट लेवल रिप्रेजेंट करेंगे अंजाव डिस्ट्रिक्ट के लिए। गर्ल्स की टीम, इन्होंने वॉलीबॉल भी जीता, फुटबॉल भी जीता। इन्हीं में से कोई चेहरा होगा जो आगे स्टेट लेवल में हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का और देश का नाम आगे जाकर रोशन करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं। अब अपने खेल को लगातार जारी रखिए, क्योंकि जिंदगी में आजकल स्पोर्ट्स का होना काफी जरूरी है। चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, आपको मेंटली, फिजिकली सब तरीके से ठीक रखता है।